राउंड के लिए हम तैयार हैं. You guys can just 1 2 3 1 2 3. Hi Ayushman. Hi Ayushman. Yeah, hi. I'm Sahil from News 18. पहली ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਨਜੋਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀ. ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲੀਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ. ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆ. ਪੂਜਾ ਕੈਮ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਨਾਨਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ करके एंड काम करके. मैं आपका क्वेश्चन समझ गई. मैं सॉरी पंजाबी में जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर मुझे हमेशा आकर बहुत अच्छा लगता है. यहाँ बहुत प्यार मिलता है, घर वाली फीलिंग आती है हमेशा. मैं बहुत बार आ नहीं चुकी हूँ, पर हमेशा घर वाली फीलिंग आती है. एंड बिफोर नोइंग आयुष्मान एज एन एक्टर, आई न्यू हिम एज ए फैन, क्योंकि मैंने भी उसकी सारी पिक्चरें देखी थी, थिएटर में सारी पिक्चरें देखी थी. क्योंकि जैसे आप कह रहे हो, अगर आयुष्मान खुराना की पिक्चर है तो डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है, कुछ मैसेज मिलने वाला है. इस वुड बी अ सॉलिड फिल्म, और मुझे भी हमेशा वैसे लगता था. दैट्स वाई जब ऑफर हुई थी मुझे पिक्चर, मुझे आयुष्मान वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैंने हाँ भी कहा. डेफिनेटली सीक्वल है, मैंने पहली वाली पिक्चर देखी है. आई वांटेड टू वर्क विद मंजोत, आई वांटेड टू वर्क विद राज सर, तो देयर वर ओनली रीजंस फॉर मी टू से यस. ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਕੈਂਪ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ बिल्कुल. ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, किਵੇਂ ਦੀ जी मेरे को ना हमेशा लालच होता है चंडीगढ़ आने का. एक अपनापन मिलता है, फैमिली है यहाँ पे, लोग इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं, और यहाँ का खाना ओ माय गॉड, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. दिल्ली में पंजाबी तो पंजाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगर मैं दिल्ली वाली पंजाबी है तो मैं दिल्ली में ज़्यादा कंफर्टेबल तो सुनो मिलूंगा. तो यहाँ पर जी खाना, अपनापन, प्यार फैमिली बहुत मिलता है. तो आई एम ग्लैड आई एम हियर. हाँ जी, आज ही कुलचे खा के आया मैं, फुल एनर्जी है मेरे में. ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਭਾਈ. ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਜਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਭਾਈ ਬੜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ everything is fine. There is the outside. और हाँ जी, मैं पूजा की आवाज़ गान कर रहा हूँ. सबसे क्लोज टू देम. He is my best friend in the film. ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ ਫੁਕਰੇ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ. हाँ, पूजा की आवाज़ था मतलब. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ. 25 अगस्त होगा, बस आएगा जरूर. मैं रेडियो काम करता ਸੀ, मैं बहुत फायदा होया रेडियो काम करना ਸੀ. इन्ने प्रैंक किए रेडियो ते मैं की दसा, वो ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ. हाँ जी, मैनू लगता है कि मतलब लेडी बनना मुश्किल है, लेडी होना और भी ज़्यादा मुश्किल है. साड़ी समाज की ये गल है. बट 4 घंटों बाद मेरी दाढ़ी आ जाती सी, दाढ़ी नाल साड़ी जाती नहीं सी, तो मैं शेव करनी पैंती सी 4 घंटे बाद. आई थिंक इट वॉज डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. हाँ जी, मैनू अपने आप तो प्यार पहली बार ही होया.
मैं इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कभी सिगा ही नहीं, मैं पहली बार आई बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड आफ्टर वाचिंग दिस फिल्म। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 यूनिफॉर्म मिसेस ने कहा यूनिफॉर्म कर लिया मतलब थोड़ा मतलब यूनिफॉर्म से तुम हॉट लगते हो पहली बार उन्हें ये घर में लेके आना। हाय सर। हाय पूजा बोल रही हूँ। वेलकम पूजा जी। सर मेरे को ये पूछना था, आपने 45 डिग्री सेल्सियस पे इतना असेंबल होके परफॉर्म किया, पहले तो कितना चैलेंजिंग था? इट वॉज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि मथुरा में शूट कर रहे थे हम 45 डिग्री सेल्सियस में। नॉर्मली हम चंडीगढ़ में इतना इतना टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के टाइम में, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेकअप पिघल रहा था, लहंगा चुभ रहा था, पता नहीं थे भारी भारी लहंगे के होते हैं और वो पता लगा कैन के बारे में, यू पुट कैन अराउंड लहंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, हाउ डू यू मैनेज दिस। बट फुल रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन आउट देयर एंड ड्रीम गर्ल 2 ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए, आई थिंक अब तक की सबसे चैलेंजिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 है। चैलेंजेस तो ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप स्क्रिप्ट उस लेवल तक बेंचमार्क तक पहुंच पाएं जो ड्रीम गर्ल 1 की स्क्रिप्ट थी। अब ये आजकल एक थ्योरी चल रही है कि सीक्वल्स चल रहे हैं, तो थैंकफुली हमारा भी सीक्वल है एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म, काफ़ी टाइम से कॉमेडी फिल्म नहीं आई है, सो आई रियली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट। कोविड के बाद ही शूट हुआ है। नहीं लिखी तब उन्होंने तब थी, लेकिन वी स्टार्टेड शूटिंग इन 2022। हाँ जी। हेलो आयुष्मान सर, सिमरन हंस फ्रॉम देसी चैनल। Hi, sir. जैसे कि हमने पूजा की आवाज़ सुनी है आपसे, तो आपने कभी रियल लाइफ में प्रैंक किया अपने किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ या आपने किसी फ्रेंड? इस सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ नहीं किया, लेकिन रियल लाइफ में मैंने रेडियो पे ज़रूर प्रैंक किया है। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी उसके पापा जब फ़ोन उठाते थे, मैं 14-15 साल का था, तब मैं लड़की की आवाज़ में बात करता था, पापा उठाते थे उसके तो फ़ोन दे देते थे अपनी बेटी को, तो ये हो चुका है मेरे साथ। उसका बात हो जाती? हाँ बात हो जाती थी। Manjot, hi, I'm Gurnas from Tribune. Hi, how are you? Good, how are you? Very well, very well. So, this is your second film with Ayushmann. Yes. And what is the kind of bond that you both share? And can you tell us 3 things that we probably don't know about Ayushmann? I think कुछ दसने की लोड़ नहीं। ऊपर इट बैठ, I'm just kidding। नहीं बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं पाजी में। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मतलब एक होता है ना, जब मैं पहली बार नरेशन ले रहा था ड्रीम गर्ल 1 का, तो एक ना मुझे था कि यार पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कनेक्शन कैसा बैठेगा, तो बट एक पंजाबी वाइब आई, एकदम से आंखों में कनेक्शन हो गया, भाई अब फन करना है फिल्म में, तो वाइब हमेशा आई है और अपनापन है और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं सेट पे और बहुत केयरिंग है, यानी कि मैं कहीं पीछे रह गया तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑलवेज, तो आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। So sweet, yeah. Thank you, Manjot. Love you. Ayushmann, is there something that you want to tell us about Manjot? Manjot is a very simple guy, and I love simplicity. I love working with people who are simple, not very complicated. Because as an artist, if you're simple and you're rooted, so I guess you're more malleable as an artist. So I really love that about it. Hi Ananya। क्योंकि फर्स्ट आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप फर्स्ट में नहीं थे, तो सेकंड में सीक्वल में जब आप आते हो तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो? नहीं डेफिनेटली चैलेंजिंग था, क्योंकि पहली वाली पिक्चर हिट थी और ऑलरेडी उन्होंने साथ में काम किया था, तो मुझे लगा कि मैं बाहर से आई हूँ, क्या मैं उनके साथ दोस्त बन पाऊँगी, कैसा लगेगा, मुझे आकर ख़राब नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी सेट था। पर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अपनापन लगा जब हम शूट कर रहे थे। सब बहुत सपोर्टिव थे, जो भी सीनियर्स भी हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एंड या आई जस्ट वांटेड टू हैव फन व्हेन आई वाज डूइंग इट, क्योंकि मेरे डैड हमेशा कहते हैं जब आप कॉमेडी फिल्म कर रहे हो, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, जस्ट लर्न हाउ टू हैव फन एंड वर्क विद गुड पीपल, एंड दैट वाज द फिल्म। या मुझे इस फिल्म में लगी कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ तो अच्छा ही होगा। मतलब मिले होंगे ना कि कुछ सीखा तो मतलब सीखा और उन्होंने एडवाइस दी कि यार इतना प्राइमरी कर लेना मैं तो भी फिल्म दे। चंकी पांडे जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई हैव सीन बहुत सारी फिल्में उनकी मैंने देखी हैं। मेरी पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में देखी थी तेज़ाब थी, और मैंने
परसों ही अनन्या को बताया कि पहली फिल्म तेजाब थी और जंगीब सर का उनमें बहुत अच्छा रोल था। एंड हमारी फिल्म में भी प्रमोशन करते समय उन्होंने एक फ़ोन कॉल प्रैंक कॉल की थी मेरे साथ, विच वॉज वेरी वेरी फनी एंड हिज सेंस ऑफ टाइमिंग इज ग्रेट। आयुष्मान भाजी इन्होंने अपने घरे लेके गए हो, दोस्तों चंडीगढ़ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗਏ ਹੋ? घर जाने का टाइम नहीं है, वी हैव टू गो टू जयपुर आफ्टर दिस। मैं खुद नहीं जा पा रहा घर तो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, उन्होंने एवरी सारे बॉम्बे में ही है। लाइक माई मदर स्टेज विद अस नाउ एंड या इज नोबडी। Hi Ayush, this side. Hi. Muskan from this side. Hi, Muskan. Ayush, जैसा कि बॉलीवुड में बहुत सारे जॉनर्स हैं, कोई लव जॉनर में एक्सपर्ट है, कोई एक्शन जॉनर में पसंद है सबको, मतलब एक अलग अलग सबका एक जॉनर बना हुआ है। आपका एक अलग जॉनर है, हटके जॉनर, आयुष जॉनर, जो कि मतलब सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मूवी से ही अब तक मतलब बधाई हो, विकी डोनर और जितनी भी मूवीज हम देखें उसमें एक अलग टॉपिक होगा, तभी आयुष हमें उस मूवी में दिखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर आपने लगाया हुआ है डायरेक्टर्स के लिए, या फिर क्या है कि डायरेक्टर्स आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, या फिर आपने पहले ही बोल रखा है कि कुछ हटके होगा तो ही आना? मतलब कोशिश तो यही रहती है कि जब तक एज एन आर्टिस्ट आप कुछ अलग ना कर पाएँ जो हिंदी सिनेमा में पहला ना देखा हो, कुछ ऐसा टॉपिक आप लेकर आए। आई थिंक इट्स जस्ट मुझे मैं एक ऑडियंस की तरह स्क्रिप्ट को कंज्यूम करता हूँ। ऑडियंस जैसे आप देखते हैं फिल्म, जब मैं नरेशन लेता हूँ मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है और मैं इंट्रीग हो रहा हूँ, एक नए टॉपिक पर बात हो रही है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें भी यही है, पिछले 20-25 साल में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें एक एक्टर मेल लीड जो है वो फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, सो इट्स वेरी डिफरेंट। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਫੀਮੇਲਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנस ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ डिफरेंट लुक ਵਿੱਚ नजर आएगा? बिल्कुल जी, आई थिंक जब तक कुछ डिफरेंट करने का मौका नहीं मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ खुद मज़ा नहीं आता एक्चुअली एज एन एक्टर। पहले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਸਰ ਚਾਚੀ 400 ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 90s 'ਚ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੋविंदा ਸਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਮਿਰ ਸਰ ਦੀ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀ। आई थिंक ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ इंस्पिरेशन है सारे, एंड आई थिंक ऑडियंस ऑलवेज वांट्स टू लुक समथिंग डिफरेंट। ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਡਲ ਜੀ को एक्सपेक्ट कर सकते ड्रीम गर्ल्स भी? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਲਿਫਿਕ ਰਾਈਟਰ। आई थिंक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇੱਕ। आई थिंक he when he breathes he just says different punches and he is very funny, so I'm sure ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। आयुष्मान It really depends on the subject. If I get to do something very out of the box, away from my core genre, I would love to do something totally for sure. ਸਰ ਕੁਸ਼ਨ here from Daily Post। ਓਕੇ ਸਰ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲਡ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੀ। 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸੋ दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू शूटिंग इन समर्स 40 डिग्री सेल्सियस में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, बिकॉज यू आर बीइंग अवेक, तो पसीना भी आ रहा है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई लॉस्ट 10 kgs फॉर दिस वन, कुछ चंडीगढ़ के आज के लिए मेरा कुछ आई थिंक हाँ इट वाज आई वाज वेरी बल्की फॉर दैट, बट इन दिस वन आई लॉस्ट 20 kgs। हाय मनजोत कमाई दिस साइड फ्रॉम गुजरात स्पोर्ट्समैन। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ। ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਈਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ सेंस ऑफ ह्यूमर कह लो, वो वाइब कह लो, वो देख के जितना मज़ा आता है, सो उस चीज़ को इंजॉय करते करते चैलेंज कितना रहता है, प्रेशर और स्ट्रेस कितना रहता है अपने करेक्टर को जस्टिफाई करने में उस वाइब के साथ? चैलेंज का तो मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि जो मैं करता हूँ, जो मुझे बोला जाता है, मैं वैसा थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, थोड़ा कैरेक्टर प्रिपेयर करते हो कि अच्छा इसमें जैसे आई एम प्लेइंग स्माइली, तो वो बड़ा विटी बंदा है, हाजिर जवाब देता है, और
कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पास सॉल्यूशन है। और इस फिल्म में ये है कि मैं जो कहानी आगे बढ़ रही है वो मेरी वजह से ही बढ़ रही है, मैंने ही सारे स्यापे करे हैं इस फिल्म में। तो एंड आई थिंक मेन क्रेडिट गोज टू राज शांडिल्य सर जो डायरेक्टर है, उन्होंने इतना इसको ब्यूटीफुली लिखा है इस फिल्म को, इस स्क्रिप्ट को, एंड उनके पास इतने सारे पंचेस होते हैं। एंड मुझे याद है मैं कभी भी जाता था उनके पास पूछने के लिए कि सर मैं इसमें क्या लूँ, एंडिंग में कोई डायलॉग बोलना है तो वो 10 ऑप्शन देते थे और मुझे 10 मिनट लगते थे हंसते हुए कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, फिर मैं जाके कैमरा के आगे टेक दूं। तो आई थिंक उन्होंने बहुत एक कंफर्ट फील कराया है, उन्होंने अच्छी लाइंस दी हैं, अच्छा एक कैरेक्टर बिल्ड किया है स्माइली का एंड सबका ऑब्वियसली। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ एंड या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वैसे ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक दैट। ड्रीम रोल इन लाइफ, मुझे आई वांट टू प्ले इधर अ म्यूजिशियन और अ डांसर ऑन स्क्रीन, क्योंकि मुझे अपने रोल के लिए आई वांट टू लर्न अ स्किल सेट दैट आई कैन यूज टू क्लासिकल म्यूजिक सिंगर और क्लासिकल डांसर, समथिंग लाइक दैट। Luckily, I'm already a girl, so I didn't take that long. I took 45 minutes. There was no pressure. You know, from Ayushman, I get the feeling that I get in Chandigarh. You know, that apnapan, homely, chill, wali feeling. I get that feeling from him. He's very, very easy to work with. But you still get to learn so much from him, and that's always nice, you know. And I wish I could work with him again. It was a lot of fun. You know, he was very well prepared. I didn't have to teach him anything. Yeah, we got this actually. Good job. Yeah.